Good afternoon, everyone. I'm audible. Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Good sir. afternoon. Good afternoon, sir. ठीक है सो आज के दो टॉपिक हमारे रहेंगे। एक एलपीजी इंडस्ट्री, काफी सिंपल टॉपिक है और आई थिंक आप लोगों ने इसको काफी टाइम रिवाइज भी किया है। और सेकंड टॉपिक बजटिंग, जिसमें हम लास्ट ईयर के कुछ दो क्वेश्चन देखेंगे। अभी नेक्स्ट ईयर का तो आने वाला होगा, तो उसमें हम लोग तब कवर करेंगे जब फिल्म्स का टाइम रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, तब उसको कवर करेंगे। बट अभी दो क्वेश्चन हम लोग अपने बजटिंग के, और दो क्वेश्चन अभी इसके, और बाकी आप हम लोग करोगे। अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और उसमें ऑलमोस्ट तीनों ही पार्ट मेरे एलपीजी वाले कवर हो जाते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है। आई विल गिव अप्रोक्सीमेटली 11 to 12 मिनट्स। हमें इसको सब लोगों को लिखना है, और आई थिंक कुछ नए लोग भी आए हैं, तो उनसे पूछना स्टार्ट करेंगे पहले। और ठीक है, तो अभी स्टार्ट करेंगे इसको, फर्स्ट क्वेश्चन को। अभी टाइम हो गया है 2:36। लगभग 11 मिनट्स का टाइम देंगे इसको, और 11 मिनट्स में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है।
सो हाउ मेनी ऑफ डन, कितने लोगों का हो गया है? सर ऑलमोस्ट डन, बस कंक्लूजन बचा है। ठीक है जी। एनी अदर स्टूडेंट जिसने कंप्लीट किया हो कोई? बेसिक क्वेश्चन था, इसमें टाइम क्यों लग रहा है भाई? हो गया रितु? यस सर। बताइए, क्या आपने इसमें मेंशन किया है? So starting to just two lines about 1990 LPG reforms that it marked a historic landmark in shaping of Indian economy, and then the definition of LPG: liberalization, privatization, globalization, with example like liberalization process of removal or easing of restriction on economic activities to हम्म। ensure greater autonomy for businesses. Example: abolition of license and quota raj. हम्म। Privatization, it is about increasing the role of private sector in economy, and it is achieved through liberalization. Globalization, increasing interdependence and interconnectedness between economies, facilitating easier movement of factors of production. Then on the impact side of LPG reforms, positive impact, growth rate has increased, investment through FDI has increased, India emerging as the one of the most attractive markets for FDI. Then share of services sector has increased, which contributes one of the largest share to FDI, promoting capital intensive growth in India. Led to हम्म। telecom revolution in India, like sub points in this services sector only, and positive current account balance on invisible sites due to high export of services. Then Okay. in social sector, the role of government increased due to increased resources. Example schemes like Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana, Awas Yojana, focus on education, health, etc. Then हम्म। challenges, negative side, stagnant share of manufacturing sector, leading to jobless growth in India. Then rising inequalities, uh, uh, phenomena of clientelization due to user charges and such concepts, leading to exclusive growth. Agricultural sector, phenomena of disguised unemployment with high share in GDP. And हम्म। export sector, it contributes only 2% of world share due to limited export basket of India. Then way forward, labor intensive sectors need to be focused. Skill upgradation to harness Industrial Revolution 4.0, use of technology like AI, etc., in all the sectors. And then fourth point, PPP-led growth. Conclusion, Niti Aayog has suggested Bharatiya model of inclusive growth to achieve Viksit Bharat by 2047. एक बार मुझे अपना आंसर शेयर भी करना, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है? जय। ये सर मुझे पहले वाले भी शेयर करने हैं, मैं आपको एक साथ में हाँ, सब एक शेयर बार। करती हूँ सर। ठीक है, ठीक है। जय। ओके सर। यस सर। क्या लिखा है आपने? सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा था कि बिकॉज ऑफ बीओपी क्राइसिस एलपीजी रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1991। हम्म। एंड उसके बाद मैंने लिखा था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन, इन विच आई रोट लिबरलाइजेशन रेफर्स टू ओपनिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी by removing barriers like tariff quota and government control to improve to increase efficiency and competitiveness. हम्म। Privatization में मैंने लिखा था it involves transfer of ownership of PSU to private players to improve efficiency and reduce government burden. Globalization में ठीक मैंने है। लिखा था it means increasing interconnectedness through trade, capital flows, technology and movement of labor. सर फिर मैंने हम्म। इफेक्ट्स ऑफ एलपीजी लिखे हैं, इसमें मैंने 6 सेक्टर उठाए थे: एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विसेज, फाइनेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर हम्म। और एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर। हम्म। एग्रीकल्चर सेक्टर में मैंने लिखा था कि इनफ्लो ऑफ HIV सीड्स प्लस इंक्रीज इन रीजनल डिस्पैरिटीज। हम्म। मैंने इसमें लिखा था इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज बट ऑल्सो इंक्रीज इन वल्नरेबिलिटी टू प्राइस, इनपुट कॉस्ट रोज विद फर्टिलाइजर डी कंट्रोल। फिर मैंने इसमें ठीक है। एग्जाम्पल दिया था बासमती राइस एक्सपोर्ट का, जो काफ़ी एक्सपेंड हुआ था आफ्टर 1991।
फिर मैंने इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर सबसे पहले लिखा था स्क्रैपिंग ऑफ एमआरटीपी लिमिट, ग्रेटर कंपटीशन एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड इनोवेशन। फिर मैंने एफडीआई इनेबल्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक पॉइंट लिखा था इसमें। देन एग्जांपल में मैंने इसमें लिखा था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रू रैपिडली बिकॉज ऑफ डीरेगुलेशन। सर्विसेज सेक्टर में मैंने सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा था बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स, आईटी टेलीकॉम सॉ अनप्रेसिडेंटेड बूम ड्यू टू ग्लोबल आउटसोर्सिंग एंड एफडीआई फ्लोज। इसमें मैंने एग्जांपल लिखा था इन्फोसिस एंड विप्रो बिकेम ग्लोबल जाइंट्स। फाइनेंशियल सेक्टर में मैंने लिखा था एंट्री ऑफ प्राइवेट बैंक्स एंड चेंजेस इन टैक्स रिफॉर्म्स। इसमें मैंने एग्जांपल लिखा था एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब प्राइवेट प्राइवेट बैंक्स आए थे। फिर मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर रिड्यूस स्टेट बर्डन एंड एक्सेलरेटेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन लिखा था। एंड एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर के अंदर मैंने हाई स्किल जॉब्स इंट्रोड्यूस, आईटी एंड सर्विसेज एंड शिफ्ट इन ट्रेडिशनल टू न्यू लेबर रोल्स लिखा था मैंने इसमें। फिर मैंने कंक्लूजन में लिखा था इवन दो इट प्रोड्यूस्ड ट्रेमेंडियस ग्रोथ बट इट आल्सो गिव सेक्टोरल इम्बैलेंसेस एंड न्यू वल्नरेबिलिटीज एंड टू अचीव, मैंने लास्ट में वही विकसित भारत 2047 लिखा था। टू अचीव विकसित भारत 2047 न्यू लेबर रोल्स एंड गवर्नमेंट मतलब पॉलिसी चेंजेस आर रिक्वायर्ड, ऐसे करके कंक्लूड किया था। बढ़िया, ठीक है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, एक बार इसको देख लेते हैं क्या इसमें क्या आंसर बन सकता है। सो बेसिकली उसने डायरेक्टली पूछा था कि आप तीनों वर्ड्स लाइक एलपीजी से क्या समझते हो ना, लाइक लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। देन इसके बाद में आपका एग्जामिन द इफेक्ट्स ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स ऑन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन में वही हम लोग 1991 से स्टार्ट करेंगे, पॉपुलरली नोन एज द एलपीजी रिफॉर्म्स मार्क्ड एज वाटरशेड मूवमेंट इन इंडियाज डेवलपमेंट ट्रेजेडी। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद में आप डायरेक्टली लिबरेशन, रिड्यूस स्टेट कंट्रोल्स, प्राइवेटाइजेशन, डिफाइन रिडिफाइन द रोल ऑफ गवर्नमेंट एज अ फैसिलिटेटर रेदर देन अ प्रोड्यूसर। एंड देन उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन कनेक्टेड विद इंडिया टू ग्लोबल वैल्यू चेन्स, ये मेंशन कर सकते हो। सो मैंने थोड़ा सा लेंदी इसलिए बनाया क्योंकि आप इसमें से ही कट करके अपना एक एक फिक्स इंट्रोडक्शन बना लेना, जो कि कभी भी कुछ भी क्वेश्चन आता है एलपीजी के बेस्ड, आप उस इंट्रोडक्शन को वहां पर डायरेक्टली आप कोट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप बनाओगे। ठीक है, इसके बाद में एलपीजी रिफॉर्म्स। सो सबसे पहले लिबरेशन। सो ये क्या, इसने क्या किया, ईजिंग गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंडस्ट्रियल ट्रेड एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। इसके फीचर्स थे एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर मोस्ट सेक्टर्स। देन सेकंड, रिडक्शन इन द इंपोर्ट टैरिफ्स, लाइक पहले 300 था 1991 में, अब टू लार्जली 10% टुडे। ठीक है, डीरेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट्स एंड इंटरेस्ट रेट्स, देन ओपनिंग ऑफ सेक्टर्स टू एफडीआई सच एज टेलीकॉम, इंश्योरेंस एंड एविएशन। अब इसको याद करने का, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार ऐसा पूछ सकता है, और हम लोग एलपीजी को इन जीएस पेपर 1 में भी यूज करते हैं, सोसाइटी पार्ट में, एंड यहाँ पर भी यूज करते हैं। और कभी कभी ये टॉपिक्स आप अपने एसए में भी यूज करते हो, वहां पर एलपीजी का आप यूज करते हो डायरेक्टली। तो वहां पर भी याद रखने के लिए कि एलपीजी को हम लोग किस तरह से याद कर सकते हैं। लिबरेशन में क्या आता है, लिबरेशन में आपका आएगा यहाँ पर लिफ्ट। ठीक है, लिफ्ट में सबसे पहले लाइसेंसिंग, इसमें जो भी लाइसेंसिंग रहेगा उसको हमने क्या क्या अबोलिश किया है। अब इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है लिबरेशन का, उसको लिफ्ट से याद करेंगे। ठीक है, तो लाइसेंसिंग एबोलिश हुआ है। सेकंड में इंपोर्ट, आई से इंपोर्ट टैरिफ रिड्यूस्ड, टैरिफ रिड्यूस्ड। ठीक है, एक ये हो गया। देन एफ से, ये आई एल, एफ से यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर डिरेगुलेटेड है, फाइनेंशियल सेक्टर deregulated. Then T4, trade and FDI open. तो इसको याद करने का सिंपल सा लिबरेशन को एक तरीका है, लिफ्ट से याद करेंगे, क्योंकि बेसिकली हमारे पास में मिक्स मैच कर लेते हैं चीजों को, तो ये वर्ड आपके पास में रहेगा, तो आप इजिली इसको याद कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, देन सेकंड पार्ट देखते हैं प्राइवेटाइजेशन। इसमें प्राइवेटाइजेशन इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग ओनरशिप और मैनेजमेंट फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, यहाँ पर जो भी हमारे ओनरशिप ट्रांसफर हुई थी पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर्स में। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट लाइक एयर इंडिया सेल टू टाटा ग्रुप इन 2022, देन कॉर्पोरेशन of Ordnance Factory Board 2021, and then finally triple T models in the airports, दिल्ली मुंबई रेलवेज में स्टेशन रिडेवलपमेंट एंड द हाईवेज का। तो इसको भी याद करने का 3D ट्रिपल पी। ठीक है, हम 3D के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा, 3D ट्रिपल पी। 3D में सबसे पहले डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी,
जो यहाँ पर एयर इंडिया सेल्स टू टाटा सेल हमने दिखाया। देन सेकेंडली हमारे पास में आएगा यहाँ पर डिपार्टमेंट का जिसमें हमने कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ OFB, ये वाला OFB एक पार्ट ही लिख सकते हैं। देन थर्ड डी जो मेरा आएगा डी कंट्रोल ऑफ PSU मोनोपोली, ठीक है, डी कंट्रोल ऑफ PSU मोनोपोली। देन द लास्ट वन ट्रिपल P में अपना एयरपोर्ट्स, रेलवेज एंड हाईवेज, जो भी इसमें आ सकता है, जो हमने 5 उसमें वेक्टर्स पे बात किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम कल करेंगे तो उस पर ज्यादा डेप्थ में बात करेंगे, ठीक है। तो याद करने का कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती है, जैसे अब लिफ्ट बता दिया, 3D ट्रिपल P हो गया, ठीक है। देन द थर्ड वन इज ग्लोबलाइजेशन। So the globalization denotes deeper integration with world markets, जिसमें उसके क्या इंडिकेटर्स हैं? FDI inflows grew to 1.9 million 1991 to 85 billion 2023-24. Trade GDP ratio rose from 13 to 1991 में था, 48% 2024। देखो कभी भी ये डाटा जो है ना, आप रॉन्ग मत लिखना, क्योंकि उसमें पड़ जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली करके भी ऐसा कुछ अगर कहीं पर दे रखा है डाटा तो उसको लिखो, अगर आसपास में हो तो अप्रोक्सीमेटली कभी कभी यूज करोगे, बट उसको ब्लेंडर वाला रॉन्ग नहीं देना है, क्योंकि वो पकड़ा जाता है फिर। और हमेशा जब भी आप ऐसा कोई डाटा दोगे तो उसमें सोर्स मेंशन करना है कि आपको कहाँ से मिला है। तो जनरली हम लोग तो इकोनॉमिक सर्वे कोट कर देते हैं, या फिर अभी जैसे इसने ग्लोबलाइजेशन डिनोट्स डीपर इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर भी हम लोग इकोनॉमिक सर्वे को कोट्स कर सकते हैं, ठीक है। देन द थर्ड पार्ट इज इंडिया has become a major player of IT outsourcing, parametricals and then services exports, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन को याद करने के लिए सिंपल सा एक वर्ड है फिट। भाई हमें ग्लोबल अपने रिलेशन बनाने तो हम लोगों को फिट रहना पड़ेगा, ठीक है। फिट में सबसे पहले आपका FDI अप हो गया, ठीक है, F से। देन I से इंटीग्रेशन विद ओल्ड मार्केट्स, इंटीग्रेशन विद ओल्ड मार्केट्स, लाइक उसमें ट्रेड क्या हुआ हमारा? GDP अप हो गया। देन T फॉर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज बूम। क्या बूम हुआ भाई? IT सेक्टर बूम हुआ, IT और फार्मा कंपनीज बूम हुई, ठीक है। तो 3 वर्ड आप लोगों ने पढ़े यहाँ पर। सबसे पहला तो आपने यहाँ पर पढ़ा है लिफ्ट, देन द सेकंड यहाँ पर आपने 3D ट्रिपल P एंड देन थर्ड वन इज फिट। ये आपका LPG मिलके बनेगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप लिखोगे तो आपको ये एकदम से याद आ जाएगा। इसके बाद में आपके यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स ऑफ द LPG रिफॉर्म्स ऑन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। फर्स्ट सेक्टर था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, जय ने भी बताया और ऋतु ने बताया, तो उसी पॉइंट्स को, क्योंकि वो सेम पॉइंट्स रहेंगे, इससे ज्यादा कोई इसमें पॉइंट्स बनेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर में पॉजिटिव आउटकम्स में क्या आया? इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंप्रूव सिग्निफिकेंटली स्पेशली इन द ऑटोमोबाइल्स, और ये फार्मा में और इलेक्ट्रॉनिक्स में, 3 चीजों में हमारा जो इंप्रूवमेंट हुआ था इंडस्ट्रियल ग्रोथ वहां पर। एंट्री ऑफ ग्लोबल प्लेयर्स लाइक Hyundai, LG, Samsung, एनहांस कंपटीशन, एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजी एडप्टेशन। अब इन क्वेश्चंस में हम लोग डायरेक्टली इन कंपनीज के नेम को कोट करेंगे, ठीक है। देन इंडियाज emerged एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, contributing 20% ऑफ द ग्लोबल जेनेरिक ड्रग सप्लाई। अभी एक अच्छा पॉइंट है, और इस पॉइंट को आप डायरेक्टली अपने आंसर में कोट कर सकते हो। ऑल्सो मैंने यहीं पर ही क्या किया, मैंने यहीं पर इस पॉइंट के साथ में अपना पॉजिटिव आउटकम के साथ में नेगेटिव पॉइंट्स भी मेंशन कर दिए। नेगेटिव में क्या आया चैलेंजेस में? MSME फेस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्टेड गुड्स स्पेशली चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्सटाइल्स। अभी कुछ टाइम पहले जैसे हम लोगों को सेमीकंडक्टर चिप के बारे में आप लोगों ने काफी क्वेश्चंस भी उस टाइम पे हुए थे, तो वो एक इशू मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग शेयर इन GDP रिमेन स्टेगनेंट लाइक 17% इन 2024। एक सेक्टर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में पॉजिटिव, और चैलेंजेस में ये पार्ट हम लोग मेंशन कर सकते हैं। देन द सेकंड सेक्टर इज एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। सो इन द एग्रीकल्चर, अब वैसे तो इसको भी हम लोग याद करते हैं कि भाई इसको जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? एक जेम IC करके हम लोगों ने कीवर्ड बनाया है, GEM एंड IC, तो उससे भी हम लोग कर सकते हैं। जेम से मतलब ग्रोथ इन ऑटो फार्मा, और फिर लिख देता हूँ इसको अगर आप लोग लिखना चाहो तो। इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो हमारा है वो है जेम IC, ठीक है। उसमें क्या होता है? ग्रोथ इन
auto and pharma. E for efficiency due to competition. Then M for MNC, जिसमें Hyundai और ये LG और सैमसंग जो भी कंपनी का नाम वो आ जाएंगे, ठीक है। IC का मतलब यहाँ पर जो कि हमारे इस वाले पार्ट को यूज करने के लिए बनाया है बेसिकली, तो उसमें IC में आपका इंपोर्ट हर्टिंग MSME, इंपोर्ट हर्टिंग MSME, और एक यहाँ पर कांस्टेंट मैन्युफैक्चरिंग शेयर ऐसा करके। बट आप जेम याद करोगे तो पॉजिटिव पॉइंट्स आपको याद करने, नेगेटिव तो खुद बना सकते हैं कभी। तो पॉजिटिव में आप एक इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए जेम वर्ड यूज कर सकते हो, आप कहीं भी यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। देन सेकंड वन इज द एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें आप प्रॉफिट्स की गेन्स की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। उसमें एग्रीकल्चर बिकम मोर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। इंडिया इज द लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर एंड द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस, शुगर एंड मेराइन प्रोडक्ट्स, ठीक है। Then the second part is horticulture में horticulture output has surpassed food grain output like 355 million tons in the 2023-24 तक, ठीक है। इसका भी कुछ कंसर्न निकल के आया। सबसे पहले इसका कंसर्न निकल गया एक्सपोजर ऑफ द ग्लोबल प्राइस शॉक्स लाइक edible oil inflation during Russia Ukraine war के through, rising input cost due to corporatization of the seeds and fertilizers, then restrictions under WTO limit flexibility in expanding farm subsidies and MSP, ठीक है। तो ये इसके कुछ कंसर्न्स थे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में था। देन उसके बाद में सर्विस सेक्टर। एक्चुअली हम लोग जब भी एलपीजी की बात करते हैं तो हमारे पास में लिमिटेड सेक्टर्स होते हैं जिन पे हम लोग अब कुछ पॉइंट प्लस पॉजिटिव पॉइंट्स लेके चलेंगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स लेके चलेंगे, ठीक है। तो सर्विसेज सेक्टर में या उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो भी रहेगा, मैं सर्विसेज कंट्रीब्यूट 54% होता था इंडिया जीडीपी। ये डाटा जो आप लिखोगे ना वो मतलब इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा एज देके जाएगा जब भी आप डाटा फैक्ट्स का यूज करोगे। देन आईटी बीपीएम एक्सपोर्ट्स रोज 5 बिलियन 99 टू 254 बिलियन 24। इधर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यूपीआई रिकॉर्डेड 131 बिलियन ट्रांजैक्शन इन 2023, इंडियाज लीड्स इन फिनटेक अडॉप्टेशन। अब उसका कुछ एक्सपेंशन एरियाज लाइक ग्रोथ इन एविएशन, टेलीकॉम, टूरिज्म, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड टेक। देन द फोर्थ सेक्टर इज फाइनेंशियल एंड ट्रेड सेक्टर्स। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स में एंट्री ऑफ प्राइवेट बैंक्स लाइक एचडीएफसी, आईसीसीआई एंड देन इंप्रूव्ड एफिशिएंसी जिन्होंने आके, फिर सेबी स्ट्रेंथन कैपिटल मार्केट्स, शिफ्ट टू स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग एंड बेटर रेगुलेशन, जो भी चल रहे हैं चीजें। देन इसके बाद में इंश्योरेंस सेक्टर ओपन टू प्राइवेट प्लेयर्स लाइक 48% मार्केट शेयर टुडे। इधर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हो गया। फिर ट्रेड सेक्टर्स में टोटल ट्रेड इंक्रीज 38 बिलियन 1991, 778 बिलियन 223-24 में। Integration into global value chains in auto components like pharma, textiles. Then I have given two concerns like high import and dependence on the crude oil 85%, trade deficit with China widen 77 billion 223-24. Then the fifth sector is infrastructure sector. So in infrastructure sector सबसे पहले ट्रिपल पी led expansion in highways, airports, ports, Sagarmala and Bharatmala, ठीक है। आप ये एग्जांपल की तरह इसको यूज करना। देन 5G रोल आउट 2023 स्टैंडर्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज कंस्ट्रक्शन रीच 28 किलोमीटर पर डे इन 2024। अब देखो आप लोग सिंपल, एक मैंने जितने बच्चे की कॉपी देखी है वो सिंपल लिखते हैं हाईवेज कंस्ट्रक्शन, बट इस टाइप का डाटा कोई मेंशन नहीं करेगा। तो ये एक अलग इंपैक्ट डालता है एग्जामिनर के माइंडसेट पे कि बच्चे ने बिल्कुल बारीकी से उस चीज पे चीजें मेंशन कर रखी है। तो आप इस टाइप का कुछ बना के रखो अपना। देन वे फोर में बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीनेस, जिसमें एक्सपेंड पीएलआई स्कीम्स, focus on semiconductor and EV ecosystems. Then strengthen MSME जिसमें improve credit access, digital tool, cluster development. Then make agriculture globally competitive जिसमें cold chains का या stable export basis बनाने का काम होता है. Reduce trade vulnerabilities, import sources and promote indigenous production of critical goods. Scaling orientation growth होता है जिसमें AI, robotics और digital economy आजकल चल रहा है हमारा. Deepen financial markets में bond markets and improve NPA management. तो ये चीजें हम लोग इसमें मेंशन कर सकते हैं। और इसके बाद एक कंक्लूजन जिसमें हम लोगों ने लाइक ट्रांसफॉर्म इंडिया फ्रॉम अ टाइटली रेगुलेटेड इकोनॉमी इनटू वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स, ठीक है। उसके बाद कुछ एमएसएमई का भी उसमें मेंशन किया है। और यहाँ पर फिर एज इंडिया एंड एरा ऑफ डिजिटाइजेशन, ग्रीन एनर्जी एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, a calibrated second generation reform strategy focus on resilience, equity and competitiveness। तो अब ये तीन वर्ड भी यूज करोगे लाइक एंटर्स एन एरा ऑफ डिजिटाइजेशन, ग्रीन एनर्जी एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटीज इन कैलिब्रेटेड सेकंड जनरेशन रिफॉर्म स्ट्रेटजी। तो ये आप एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन अपना बना सकते हो। ऐसे कितने स्टूडेंट अभी इनमें से जिन्होंने मतलब इस आंसर को बिल्कुल भी नहीं लिख पाए? ऐसा कौन कौन बच्चा है?
है कोई जो बिल्कुल ही पॉइंट जनरेट नहीं कर पाया इस क्वेश्चन पे? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी इसके बाद। पहले एक बार है ना चलो सेकंड कर लेते हैं, पहले सेकंड क्वेश्चन से सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। Enumerate the factors behind the proliferation of IT industry in India. Also explain the reasons behind the skewed concentration of the IT industry within the country. 10 marks में है. So I'll give you 8 minutes for this question. So I'll try to finish within 8 minutes. 3 8 हो गया है. इसको हम लोग मोस्ट प्रोबेबली 3:17 तक फिनिश कर लेंगे. सर आई हैव अ डाउट। जैसे जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें हमने एग्जामिन द इफेक्ट्स किए हैं, तो हमने काफ़ी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स एग्जामिन कर दिए टिल डेट तक। हाँ तो हाँ. जैसे क्वेश्चन में एलपीजी था, तो हमें इसके आफ्टर लाइक 1991 टू 2004 तक के फेज के इफेक्ट एग्जामिन करने थे, या आज टिल डेट तक के करने थे, क्योंकि दोनों बहुत आज, अलग हैं। हाँ इसमें मेंशन वैसे नहीं किया था, लेकिन हम लोग जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्योंकि वो स्पेशली अगर जब तक का करना होगा तो वो एक फेज दे देगा, फेज नंबर 1 ऐसा करके ना, तो कुछ फेजेस के बारे में बात करेगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप शायद फिफ्थ क्वेश्चन का जब हम लोग देखेंगे तो फिफ्थ क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ मेंशन करने का है वहां पर, मोस्ट हम्म। प्रोबेबली। तो वहां पर फेज नहीं दिया, तो हम लोग इन टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग कोशिश करेंगे कि टिल डेट तक हम जो भी चेंजेस हुए हैं उनके बारे में मेंशन करें, क्योंकि अगर मैं उससे पहले के जो रिफॉर्म होंगे वो जनरली स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, क्योंकि उस टाइम पे क्या क्या रिफॉर्म हुआ, हाँ आज के कॉन्टेक्स्ट में वो रिफॉर्म करने का बताएगा तो उसमें वो चीजेस बता सकता है। तो जैसे अगर मेंशन ना हो तो फिर टिल डेट तक का करना है, बट टिल अगर डेट तक का, हाँ। mention हो तो मेंशन, just- अगर मेंशन होगा तो फिर वो हम लोगों को उस टाइप से ही मतलब उसको फिनिश करना है। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, लिखो भाई, इसको करो स्टार्ट फिर।
डन। यस सौरभ क्या सर। लिखा आपने? बताओ निश्चित। सर ये सर मैंने इंट्रोडक्शन में स्टार्ट किया है। इंडियाज आईटी एक्सपेंशन रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन कैपिटल एडवांटेज कपल्ड विद द एलपीजी रिफॉर्म्स मेकिंग अ 245 बिलियन डिजिटल सर्विसेज हब, मेकिंग इंडिया अ $245 बिलियन डिजिटल सर्विसेज हब। फिर मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला फैक्टर्स बिहाइंड प्रोलिफरेशन ऑफ आईटी इंडस्ट्री। इसमें पहला पॉइंट लिखा है कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस विद एडवांटेज विद वेजेस नियरली 1/3 ऑफ यूएस लेवल्स इनेबलिंग अट्रैक्टिव ऑफशोरिंग। सेकंड लिखा है लार्ज स्किल्ड वर्कफोर्स। इंडिया प्रोड्यूसेस नियरली 2.5 मिलियन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एवरी ईयर। फिर थर्ड लिखा है टेलीकॉम एंड इंटरनेट लिबरलाइजेशन क्रिएटेड डिजिटल बैकबोन। एग्जाम्पल इसमें डेटा दिया है 90 करोड़ इंटरनेट यूजर्स एज पर TRAI। फिर फोर्थ लिखा है FDI ओपननेस विथ 100% ऑटोमेटिक रूट एंड IT सेक्टर अट्रैक्टेड MNCs एंड टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन। फिर फिफ्थ लिखा है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड टाइम जोन एडवांटेज इनेबल्ड 24/7 ग्लोबल ऑपरेशंस स्ट्रेंथनिंग IT सर्विस एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। फिर मैंने रीजंस फॉर स्क्यूड कंसंट्रेशन लिखा है। सर इसमें पहला पॉइंट है स्टेट लेवल पॉलिसी एसिमेट्री क्रिएटेड फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसमें एग्जांपल दिया है कर्नाटका IT पॉलिसी। फिर सेकंड लिखा है ग्लोबल कनेक्टिविटी हब्स offered early marine submarine cables access and higher bandwidth links, example Hyderabad, Bengaluru। फिर थर्ड लिखा है मैंने हाई क्वालिटी एजुकेशन इकोसिस्टम्स IITs, ट्रिपल IITs and engineering colleges mostly concentrated in the southern part of India। फिर मैंने फोर्थ लिखा है एग्रोमेलेशन ऑफ इकोनॉमीज early clusters attracted more firms due to shared infrastructure and network effects। फिर फिफ्थ लिखा है सुपीरियर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें सर इसमें कुछ डेटा नहीं था तो मैंने बस ये लिख दिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफिस स्पेस एंड रिलायबल पावर सप्लाई। फिर मैंने कंक्लूड किया IT प्रोलिफरेशन रिफ्लेक्ट्स इंडियाज टैलेंट लेड ट्रांसफॉर्मेशन बट बैलेंस्ड ग्रोथ नाउ रिक्वायर्स ब्रॉडनिंग डिजिटल इकोसिस्टम्स बियॉन्ड ट्रेडिशनल मेट्रो कॉरिडोर्स। ठीक है। सौरभ आपने लिखा? ये सर लिखा था। सर पहले तो मैंने सर्विस सेक्टर के बारे में बताया था कि वो इंडिया में मोर देन 50% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। फिर सर फैक्टर्स बिहाइंड प्रोलिफरेशन ऑफ आईटी इंडस्ट्री में मैंने सर बहुत जनरल पॉइंट्स निकले हैं कि पहला तो पॉइंट ये लिखा था कि मेजर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है ये 30% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट। सेकंड मैंने लिखा था कि इंडिया जम्प्ड फ्रॉम प्रोडक्शन टू डायरेक्टली सर्विस सेक्टर। तो ये थर्ड पॉइंट मैंने लिखा था कि इट आल्सो गिव बूस्ट टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप एंड विच इज आल्सो डिस्कस्ड ऑन टीवी एक्सेट्रा लाइक गिग इकोनॉमी इन्होंने बढ़ाया था और शार्क टैंक वगैरह जिसकी वजह से ऑलरेडी सर्विस सेक्टर में काफी लोग आने का ट्राई करते हैं। सर फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा था कि फाइनेंशियल सर्विसेज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन महाराष्ट्र कर्नाटका क्योंकि एफडीआई वगैरह ज्यादातर वहीं पे इन्वेस्ट होता है जैसे गिफ्ट सिटी वगैरह आया था। फिर सर मैंने चैलेंजेस सर लिखा था इसका आईटी इंडस्ट्री का कि बहुत सारे मतलब स्किल मिसमैच थे कि इंडिया स्किल रिपोर्ट के हिसाब से 49% ऑफ ग्रेजुएट्स आर ओनली एम्प्लॉयबल। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट की स्लो डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन 37% ऑफ इंडियंस लैक बेसिक इंटरनेट लिटरेसी। फिर सर मैंने लिखा था कि स्पेसिफिक हब्स ऑफ आईटी सेक्टर ग्रो गुड़गांव नोएडा बेंगलोर हैदराबाद। फिर मैंने वे फॉरवर्ड में लिखा था कि स्किलिंग द यूथ इन आईटी सेक्टर अंडर पीएम कौशल विकास योजना। सेकंड की आईटी सर्विस आईटी आईटी सर्विस प्रमोशन स्कीम्स लाइक पीएलआई फॉर आईटी हार्डवेयर। फिर स्किल पार्क कॉन्सेप्ट फॉर अदर एरियाज। फिर सर मैंने लास्ट में कंक्लूड कर दिया इसको कि आईटी सेक्टर इज द न्यू ऑयल करके। ठीक है। ठीक है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन का हमारा कुछ ये रह गया था तो आप लोग इसको रीड आउट जरूर करना क्योंकि टॉपर्स के कुछ आंसर थे ये मैं भूल गया। तो सेम उन्होंने भी ऐसे ही पैटर्न फॉलो कर रखा था जैसे हम लोगों ने अपने मॉडल्स को देखा था लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट से उन लोगों ने यहाँ पर इसको मेंशन किया था। तो आप लोग भी एक बार इसको जरूर देखना। लाइक उन्होंने भी इसी तरह से सेक्टर वाइज ही डिवाइड करके आंसर को फ्रेम किया है ना। तो पहले तीनों को एक्सप्लेन किया वन बाय वन, देन द इफेक्ट्स जो दिखाए थे एग्रीकल्चर सेक्टर, देन फिर एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एंड देन इसके बाद में उन्होंने 2.0 से इसको कंक्लूड कर दिया। तो ये दो आंसर हैं दो टॉपर्स के को मिले थे तो आप इनको भी एक बार रीड आउट कर सकते हो। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में फटाफट इसको थोड़ा देखते हैं।
काफी सिंपल क्वेश्चन था। मैंने ये क्वेश्चन एक्चुअली में जो एक क्वेश्चन था ये आ रखा, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है वो जीएस पेपर 1। ठीक है, तो ये डायरेक्टली मैं इसको जीएस 3 का नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने जीएस 1 के रेफरेंस से उठाया क्वेश्चन। ठीक है, सोसाइटी के रेफरेंस से। लेकिन हम लोग आंसर को जो डील करेंगे, जो क्वेश्चन को डील करेंगे वो आंसर लिखना, वो जीएस 3 के रेफरेंस से ही आंसर लिखेंगे। 3 और 1 में इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, तो हम लोग उसी के रेफरेंस से आंसर को डील करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा इन्होंने, रेट द फैक्टर्स बिहाइंड द प्रोलिफरेशन ऑफ द आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया, ऑल्सो एक्सप्लेन द रीजंस बिहाइंड द skewed कंसंट्रेशन ऑफ आईटी इंडस्ट्री विद इन द कंट्री, लाइक ज्योग्राफिकल कुछ चीजें होती है वो मेंशन कर रखा है। तो सबसे पहले आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज sector is one of the most successful modern industries, like contributing 7.5 to India's GDP in 2023-24 में। ठीक है, तो ये डाटा इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी जनरली इकोनॉमिक सर्वे का डाटा यूज करते हैं, तो इसलिए लिखा है। अभी जैन में जब हमारा ये 24 to 25 वाला आएगा तो हम लोग उसको यूज करेंगे। ठीक है, एम्प्लॉइंग 5.4 million people. India is a global leader in outsourcing, software development and cloud services, AI solution, business process management। जिन चीजों पे हम लोग ज्यादा लाइक ग्लोबल लीडर का तौर पे बैठे हुए हैं। However, the IT boom has been geographically uneven. The growth concentrated in a few southern and western cities. Also, you'll mention the जैसे अभी सोनभद्र गिफ्ट सिटी या नोएडा या फिर गुरुग्राम वाला, वो भी आप मेंशन कर सकते हो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि विद इन द कंट्री के अंदर पूछा तो हम वो मेंशन कर सकते हैं। Then the factors behind the proliferation of the IT industry in India. So first one is large and skilled workforce. इसमें first point engineering and the technical talent. इसमें सबसे पहले 1.5 million engineering graduates annually। ठीक है, creating a eminent skill pool like strong mathematics, coding, analytical training like IIT and NIT, triple IITs and private engineering college। ठीक है, चलो इनको मेंशन कर ही दिया हम लोगों ने। ठीक है, द सेकंड वन इज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वाला। देन उसमें इंग्लिश मीडियम स्टेम एजुकेशन फैसिलिटेटेड इंटरेक्शन विद ग्लोबल स्लाइड्स। Example, India became the preferred outsourcing destination for US and UK firms in the early 2000। This is the first part is large and skilled workforce, उसको हम लोगों ने इंजीनियरिंग से और एक इंग्लिश प्रोफेशन से कोड किया है। Then the second one is economic reforms and policy support। Economic reforms में सबसे पहले एलपीजी वाला जो हमने भी पढ़ा था उसके बारे में, तो रिमूवल ऑफ द इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, अलाउड एक्सेस टू हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट। फिर लिबरल एफडीआई पॉलिसी, और उसमें आईबीएम, एसेंचर और तीनों का मेंशन कर दिया। Then global initiatives are there. Software technology parks for India, STPI provided tech holidays, satellite links, plug and play infrastructure. Then Digital India, BharatNet, T policies, boosted connectivity. Then I have given one example. Over 300 STPI centers now support IT units in tier 2 cities like Jaipur, Coimbatore, and then Bhubaneswar। ठीक है, देन द कॉस्ट इफेक्टिवनेस। इसमें इसके बाद हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, लो ऑपरेशनल कॉस्ट, जिसमें आईटी लेबर कॉस्ट इन इंडिया 30 to 40% लोअर देन द यूएस एंड यूरोप। ठीक है, देन कॉम्पिटिटिव प्रोजेक्ट डिलीवरी। इंडिया फर्म्स ऑफर integrated solutions from coding to cloud cyber security at economical rates। Then the fifth point is growth of digital infrastructure, क्योंकि अभी इसका काफी इन्वॉल्वमेंट हो गया है। फर्स्ट पार्ट इज एक्सपेंडिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी। ठीक है, जिसमें हमारा इंडिया से 850 मिलियन इंटरनेट यूजर्स है। 2024 का डाटा है जिसमें हमारा 850 प्लस मिलियन इंटरनेट यूजर्स है। हाई स्मार्टफोन पेंट्रेशन, अनेबल्ड डिजिटल सर्विस डिलीवरी। देन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई, आधार, कोविन, डिजिलॉकर शोकेस्ड इंडियाज आईटी कैपेबिलिटीज ग्लोबली। इसका हम लोग काफी यूज करेंगे। कल इसके पे एक क्वेश्चन भी आ सकता है आप लोगों के, जो कल का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट चलेगा उस पे एक क्वेश्चन भी बन के आएगा इस टॉपिक पे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे। देन द स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक आईटी कंपनीज लाइक ग्लोबल रेपुटेशन, जिसमें हमारा टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, एंड देन ऑपरेट 100+ कंट्रीज। इंडियाज आईटी एक्सपोर्ट रेवेन्यू टू 254 बिलियन 2024 में। Then innovation ecosystem, IT firms are investing heavily AI, blockchain, quantum computing and cloud services के बारे में बात करते हैं। Then the next one is time zone and outsourcing advertisements follow the sun model। And इसमें India's time zone enables 24/7 IT support for clients in US, Europe and East Asia। ये हमारा जो अभी नोएडा गुरुग्राम में हब्स है उस टाइप के। तो इसको एक बेसिकली सिंपल सा इसको याद करने के लिए जो भी हमारा ये फैक्टर्स बिहाइंड प्रोलिफरेशन ऑफ द आईटी इंडस्ट्री, क्योंकि इस एक क्वेश्चन के लिए नहीं, ये आपका लॉन्ग टर्म को याद करने के लिए हम लोग इसको मेंशन कर सकते हैं इसमें स्पीड इट करके बताएगा ना, स्पीड इट।
ठीक है, अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं फटाफट। स्पीड से एस फॉर स्किल्ड वर्कफोर्स, ठीक है, जिसमें सबसे पहले लार्ज स्किल वाला जो हमने पॉइंट यहाँ पर देखा था, लार्ज एंड स्किल्ड वर्कफोर्स। स्किल्ड वर्कफोर्स के अंदर लार्ज इंजीनियरिंग पूल। द सेकंड वन इज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। यहाँ पर दो पार्ट आए थे स्किल्ड वर्कफोर्स में। आप और भी पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो, ये जरूरी नहीं कि आप यही दो ही पॉइंट्स को यूज करोगे, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आल्सो, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। देन फॉर द पी, पॉलिसी पॉलिसी पुश, जिसमें एलपीजी रिफॉर्म्स की बात की गई थी। एंड द सेकंड एसटीपीआई जो हमारा था वो, एंड डिजिटल इंडिया और भारत नेट, ठीक है। देन डबल ई, द फर्स्ट ई इकोनॉमिक कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, उसमें क्या आएगा? सबसे पहले इकोनॉमिक कॉस्ट में चीप लेबर आ गया, हमारे यहाँ सस्ते में काम हो जाता है। कोस्ट, कोस्ट इफेक्टिव प्रोजेक्ट डिलीवरी, ठीक है, there is a one E. Then the second is expanding digital infrastructure, इसमें क्या आएगा? इंटरनेट बूम, डाटा ही मेंशन कर सकते हो। एंड देन डीपीआई, डिजिटल अपना पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें यूपीआई, आधार एंड डीजी लॉकर, ठीक है, ये पॉइंट हो गया ई। फिर हमारा लास्ट में बचता है यहाँ पर एक डी। सो इसमें स्पीड में डी में डोमेस्टिक आईटी गेन्स, गेन्स, डोमेस्टिक आईटी गेन्स, उसमें क्या होगा हमारा? टीसीएस, इसमें अपना इंफोसिस, एसेंचर जो हमने नाम लिया, या विप्रो और एचसीएल, विप्रो और एचसीएल, ठीक है, डोमेस्टिक आईटी गेन्स। एंड इसमें ग्लोबल डिलीवरी कैपेबिलिटी, ठीक है। ये मेरा स्पीड का पूरा एक डेफिनेशन बनेगा। इसके बाद में यहाँ पर आईटी जो हमने लास्ट में लिखा था, उसमें इनोवेशन एंड टाइम जोन, जिसमें एआई, क्लाउड एंड साइबर सिक्योरिटी, या टाइम जोन जिसमें 24/7 का हम लोगों ने अभी बोला था, उस टाइप का। फिर टी से ट्रस्ट एंड आउटसोर्सिंग लीडरशिप, जिसमें ग्लोबल आउटसोर्सिंग हब, और फॉलो इसमें अपना सन मॉडल जो भी रहेगा। तो बेसिकली क्योंकि आप लोग इस तरह से कुछ चीजों को याद करोगे तो वो काफी चीजें अच्छी हो जाती हैं, है ना। किसी को इसके बारे में पता है क्या होता है ये सन मॉडल क्या होता है? एनी, किसी को भी पता है? बताओ मुझे। सर हाँ बताओ बताओ। सर ये फॉलो द सन मॉडल में ऐसा रहता है कि जैसे जैसे सन की मूवमेंट होती है ना, तो हम जो अपने टाइमिंग्स है ना, वर्क टाइमिंग्स भी अलाइन टू दैट जोन रिक्वायरमेंट। यूके का टाइमिंग है, यूएस का टाइमिंग है, तो हाँ हम वर्ल्ड ओवर केटर कर सकते हैं। यस, इसमें बेसिकली 24/7 कॉन्टिन्यूस वर्क की बात करते हैं हम लोग, यस सर। ठीक है, ग्लोबल टर्म्स के अकॉर्डिंग 24/7 वर्क की बात करते हैं। यस शुभी, ठीक है। तो ये एक किसका था आंसर? देन फिर इसके बाद में सेकंड पार्ट इसका आता है, रीजंस बिहाइंड द स्किल्ड जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन। तो वहां पर हिस्टोरिकल लीगेसी एंड पाथ डिपेंडेंसी, लाइक अर्ली टेक हब्स, जिसमें हम लोग बेंगलुरु के बेस जितने भी पब्लिक सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लाइक हेल, इसरो, भेल, ये सब की बात करेंगे। हैदराबाद में हाईटेक सिटी या गिफ्ट सिटी जो अभी आई थिंक यूपी में बन रहा है, वो सबका आईटी क्लस्टर फॉर्मेशन। सुपीरियर अर्बन स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी एंड एमिनिटीज की बात करेंगे, जिसमें एयरपोर्ट्स, रिलायबल पावर, हाई स्पीड नेटवर्क्स इन बेंगलुरु और हैदराबाद, पुणे, चेन्नई। एग्जाम्पल में दिया है बेंगलुरु, वाइट फील्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिटी बिकम वर्ल्ड क्लास टेक clusters. Then the third part is availability of the high quality education institutions like IIT, NIT, IIT, IISc, so top private colleges, and a continuous skill pipeline, talent supply creates a positive feedback loop, attracting more firms and VC funding.
स्टेट लेवल प्रैक्टिस प्रोएक्टिव पॉलिसीज है जिसमें इंसेंटिव फ्रेंडली स्टेट्स, कर्नाटका मिलीनियम आईटी पॉलिसी, तेलंगाना में टीएस आई पास, तमिलनाडु में आईटी टेस पॉलिसी, इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि बेसिकली हम लोगों को गुरुग्राम का और नोएडा का तो पता रहता है, लेकिन ये जो कर्नाटका में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, इन चीजों का हमें पता नहीं होता है। तो इस टाइप के आप पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जिसमें टाइडल पार्क, जिसमें हमारा चेन्नई, हाईटेक सिटी हैदराबाद का आप जिक्र कर सकते हैं। नेटवर्क इफेक्ट्स इन स्टार्टअप इकोसिस्टम, क्लस्टर एडवांटेजेस, Bangalore hosts 40% India startups, including unicorns like Swiggy, Zerodha, and PhonePe. Then limited infrastructure in other regions, regional disparities in states like Bihar, Jharkhand, Odisha, and other parts of UP, like due to weaker infrastructure and lower urbanization. ठीक है, आउट मार्केशन ऑफ स्किल्ड यूथ बेंगलुरु हैदराबाद फर्दर डिपेंड्स इम्बैलेंस। देन आई हैव गिवन द कंक्लूजन पार्ट जिसमें एक बैलेंस बनाने के लिए स्ट्रेंथन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेटअप आईटी पार्क्स इन टायर 2 and 3 cities, promote local skill development and incentivize firms to expand beyond traditional tech hubs, एंड इसकी वजह से इंक्लूसिव ग्रोथ एंड रिसेंट नेशनल डिजिटल इकोनॉमी। कुछ एक रैंकर का आंसर था ये, कुछ उन्होंने भी एलपीजी रिफॉर्म्स के थ्रू इसको स्टार्ट किया था, और उसमें इंडिया जीवी ऑफ दिस इंडस्ट्री मोर देन 50% उन्होंने मेंशन किया। देन फैक्टर्स बिहाइंड प्रोलिफरेशन में इकोनॉमिक फैक्टर का जिक्र किया, एलपीजी रिफॉर्म्स जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फैक्टर, नाउ इट इज स्किल्ड प्रोफेशनल्स की बात की गई, चीप लेबर की बात की गई, वाया विज यूएस एम्प्लॉइज जो हमने अभी पूरा एक्सप्लेन किया था। कुछ जियोग्राफिकल फैक्टर्स की बात किया गया जिसमें उन्होंने क्लाइमेट सिमिलर टू सिलिकॉन वैली ऑफ कैलिफोर्निया की बात की। देन इंटरनल माइग्रेशन की बात बोला उन्होंने। देन फिर पॉलिटिकल फैक्टर आ गया, कुछ पॉलिटिकल फैक्टर लाइक तेलंगाना ने आंध्र प्रदेश का एक जिक्र किया है। फिर वेरियस लेबर रिफॉर्म्स ओवर द टेक्नोलॉजिकल एंड फिर टेक्निकल रीजंस, चीप डाटा होता है। फिर रूरल स्किल्ड कंसिडरेशन में हिस्टोरिकल जो हमने भी पढ़ा था पूरा, हैदराबाद का उन्होंने मेंशन किया, स्किल्ड लेबर्स का, कंपनी सेटिंग अप न्यू ब्रांचेस मेंशन किया है। फिर इसके बाद में पॉलिटिकल हैंड होल्ड के लिए मेंशन किया है। ठीक है, इसके बाद पीपल प्रेफरिंग क्लाइमेट कंडीशन टू द फेवरेबल लाइक नोएडा इन बेंगलोर के बारे में बात की गई है। ठीक है, इसमें आपको जो वर्क फ्रॉम होम का एक कॉन्सेप्ट था, विच डज नॉट डिपेंड ऑन लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, दिस चेंजेस द होल कॉन्सेप्ट। तो एक ये वाला पार्ट भी जो कोविड-19 के बाद में आया था, हम ये भी मेंशन कर सकते हैं। तो अब कैसा भी क्वेश्चन आएगा उसमें लाइक इंडस्ट्री टाइप का, तो आपके पास में स्पीड आईटी का एक कॉन्सेप्ट रहेगा, उसके थ्रू आप पॉइंट्स को मेंशन करोगे। एलपीजी का ही बताया और इसका ही बताया अभी। ठीक है, एक थर्ड क्वेश्चन अभी स्टार्ट करेंगे। Sir, if we are writing this question related to society, can we mention about Indian diaspora also? Like it helped to build us trust and increase the FDI investments. यस, कर सकते हैं वो भी। इंडियन But ये डायस्पोरा, Indian, but ये economy पे सही रहेगा because our diaspora is related to society and हाँ, globalization. लेकिन उसमें आप एक ही पॉइंट मेंशन कर सकते हो ना उसको, मतलब ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते उसको हम लोग, एक ही पॉइंट में उसको मेंशन कर सकते हो सिर्फ। Okay, sir. अभी Sir, थर्ड को, हाँ I have a हाँ question. इशिता, I don't know हाँ if it's इशिता। necessary or not in the question, but I've made a हम्म, small timeline right after the introduction. I've given pre 1995, 1995 to 2000, then 2000 to 2015, and then post 2020, where I've written like what happened in the IT sector in India. Basically, like हम्म, growth purposes. I don't know if it's necessary or not, but I've written it. Should I remove it or should I let it be there? नहीं, इसको रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली हम लोगों को इसमें फैक्टर मेंशन करने पड़ेंगे, जो भी इसके पॉजिटिव Okay. आउटकम्स है वो मेंशन होंगे। आप Okay. उसको वैसे मेंशन कर सकते हो, फेजेस के अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो, बट उसमें काफी लेंदी हो जाएगा बिकॉज 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। I've अगर made 15 it मार्क्स, in a box and arrow, so it's just one, like हाँ ठीक just है, in तो a one line. हाँ तो वो ठीक है, फिर वैसे कर सकते Oh. हैं, क्योंकि अगर 10 मार्क्स में आप स्टार्टिंग में एक पेज अपना फ्रंट में इंट्रोडक्शन भर No, देने की कोशिश it's करो। only literally just one line. ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, और काफी मतलब मेरे को थोड़ा न्यू क्वेश्चन भी लगा ये, आप लोगों ने शायद पढ़ भी रखा होगा, तो आप एक बार इसको ट्राई करो। व्हाट आर द इश्यूज फेस्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन इन ऑफ इंडिया, कमेंट ऑन द मेजर्स दैट हैव बीन टेकन टू टैकल दीज इश्यूज। इट्स अ 50 मार्क का क्वेश्चन, ये याद रखना है, 50 मार्क का क्वेश्चन है। तो 338 पे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इसको। 350 पे इसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे।
इसने ट्राई किया? यस सर। यस सर। तन्वी क्या लिखा आपने? सर मैंने इंट्रो में लिखा है नॉर्थ ईस्ट रीजन कंट्रीब्यूट ओनली 3% ऑफ इंडिया जीडीपी डिस्पाइट बीइंग रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। फिर सर इश्यूज डाले हैं। पहला लिखा पुअर कनेक्टिविटी, डिफिकल्ट टेरेन, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जाम्पल में लिखा है हाई फ्लाइट कॉस्ट ड्यू टू हिली एरिया, हिली रोड। फिर लिखा है इंसर्जेंसी एंड बॉर्डर इशू, militant activities create a negative image on investors. This led to low in FDI. Example में लिखा delay in multi projects. फिर लिखा land acquisition and bureaucratic hurdles, communal land ownership. Examples Nagaland, Mizoram. फिर लिखा skill shortage and training, limited technical training institutions. फिर सर मेजर्स दिए हैं। मेजर्स में लिखा है पहले कनेक्टिविटी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एग्जाम्पल लिखा है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट लिंक मिजोरम टू म्यांमार। और फिर इसके बाद लिखा है इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम, नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कीम, रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट। फिर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। फिर बॉर्डर हार्ट्स विद बांग्लादेश टू प्रमोट लोकल ट्रेड। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाइक पीएम कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया प्रोग्राम। Accelerate hydropower projects with Northeast, peace accord with several insurgent group. बस फिर से conclusion में लिख दिया है hence with better connectivity we can transform this region into major trade hub of India's eastward economic strategy. डेटा ज्यादा मेंशन नहीं किया सर। ठीक है। और अंशुमन आपने लिखा? यस सर। बताइए। So मैंने शुरू किया था नॉर्थ ईस्ट रीजन filled with environmental resources but faces environmental infrastructure and tribal specific issues led to slow growth in the region. फिर मैंने इशू में लिखा है geographical isolation connected through only Siliguri corridor and hostile neighbors like Bangladesh, China and Myanmar. Insurgency and security issues में cross border tensions with Myanmar and illegal migration with Bangladesh leads to demographic challenges in the area. Third, poor transportation. इसमें मैंने कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं डाला। एंड फोर्थ में ट्राइबल बिलीव्स प्लस सेक्रेड फॉरेस्ट लीड्स हिंडर द लैंड एक्विजिशन। वीक मार्केट लिंकेजेस, अंडरडेवलप्ड सप्लाई चेन्स ऑफ बैम्बू, सिल्क और हैंडीक्राफ्ट, पुअर इंटीग्रेशन विथ मार्केट लिंकेजेस एंड मार्केटिंग चैलेंजेस। फिर लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर, लो प्रेजेंस ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स लाइक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हैम्पर इट्स इफेक्टिवनेस। मीजर्स में मैंने लिखा है कनेक्टिविटी इनहेंसमेंट लाइक भारत माला, कालादान मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी एंड नेशनल हाईवे अलोंग बॉर्डर्स, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाइक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी कनेक्टिंग नॉर्थ ईस्ट विद आसियान कंट्रीज, पीस एग्रीमेंट लाइक बोडो एग्रीमेंट एंड आसाम एग्रीमेंट, fostering peace in the region, or tourism and festivals like homestay and festivals enhances the local economy. Conclusion लिखा है sustainable investment improve the logistic and leverage local strength, local economy can transform northeast region into major industrial hub. ओके, ठीक है। तो एक बार इसको देखते हैं फटाफट। इसमें किसी ने मैप वगैरह बनाया है क्या? कुछ मैप बनाने की कोशिश की है? यस सर मैंने बनाया यस है। सर। ठीक है, क्या बनाया? मतलब नॉर्थ ईस्ट पूरा बना दिया? छोटा सा सर वो नॉर्थ जो ईस्ट पॉइंट ठीक है, सर ठीक है। सर मैंने ये आइसोलेशन का जो पॉइंट है ना उसमें छोटा सा एक मैप बना के वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हाईलाइट कर दिया वहां पे। राइट, चिकन नेक वाला ना? यस सर। ठीक है, बढ़िया। ये वाला बनाना है हर एक को, मतलब वहां पर ये नॉर्थ ईस्ट में जब भी मैं बनाऊंगा तो चिकन नेक वाला एक पॉइंट बनाना है वहां पर। ठीक है, तो इसको थोड़ा देखते हैं अब क्या है इसमें। तो सबसे पहले इन्होंने पूछा था कि भाई क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, है ना, वहां पर इश्यूज इन द
development of trade and industries in the northeast region, comment on the measures that have been taken to tackle these issues. So सबसे पहले इंट्रोडक्शन में नॉर्थ ईस्ट रीजन विद द रिच नेचुरल रिसोर्सेज, यूनिक बायोडाइवर्सिटी एंड proximity to South East Asia holds immense potential to trade and industrial development. लेकिन दिक्कत ये है कि रीजन contributes less than 3% to India GDP and remains industrially underdeveloped. तो बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन बनेगा जिसमें हम लोग डाटा मेंशन करेंगे जो कि लेस देन 3% टू इंडियन जीडीपी के लिए एक डाटा मेंशन करेंगे, और एक बता देंगे कि भाई काफी रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में, यूनिक बायोडाइवर्सिटी है, सबसे अच्छी बात है पॉल्यूशन फ्री है ना, तो ये सब चीजें मेंशन कर सकते हैं. इश्यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन. तो सबसे पहले ज्योग्राफिकल और इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स आते हैं. डिफिकल्ट टेरेन, over 70% of the region is mountainous, road building is costly and slow. Okay. Then logistics bottlenecks, heavy dependence on the Siliguri corridor, chicken neck restricts commodity flow. यहाँ पर वो डायग्राम भी बन सकता है. Frequent landslides in Sikkim and Meghalaya cause months-long road blockages, disrupting supply chains. This is the example जो आप latest वाला भी कोई landslide का example वहाँ पर mention कर सकते हो. Then second point is weak industrial infrastructure, lack of large industrial zones, limited cold chains, unreliable power supply, deter private investment. So only Assam and Sikkim have semi-developed industrial bases. States like Nagaland, Mizoram have negligible industrial clusters. Then there is one example: inadequate warehousing has hampered agri-processing industries in Tripura and Manipur. तो आप एक एग्जांपल और उसके एक पॉइंट को मेंशन करते हुए चलोगे यहाँ पर. Then security challenges and social conflicts, insurgency, ethnic clashes, interstate boundary dispute causes long-term investments like Manipur violence अभी जो हुआ था, reduced trade through the Moreh border with Myanmar. Then limited market ecosystem and credit flow, जिसमें low purchasing power and dispersed population, reduced market size, less than 2% of total national bank credit, weakening MSME growth. ये पॉइंट भी एक अच्छा पॉइंट है, इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो. Then connectivity gaps in with Southeast Asia, potential to connect with Bangladesh, Myanmar, Thailand remains underutilized due to incomplete projects like India, Myanmar, Thailand trilateral highway delayed due to instability in Myanmar. तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं बन पा रहा है. Then फिर present multi-modal project faces operational and security challenges. Then there is a environmental constraints, fragile ecology restricts large-scale industry like mining, heavy manufacturing, and large hydro projects. Example में hydropower projects in Arunachal Pradesh face environmental crisis and community resistance. So अब इसको जो याद करने का तरीका है कि भाई इसको कैसे याद कर सकते हैं, ज्योग्राफिकल ये सब दे रखा है इन्होंने. इसमें हम लोग एक छोटा सा जैसे हिल एरिया है तो इसको क्या बना सकते हैं, हिल सेक. ठीक है, अब जैसे बताएं तो ऐसे सबसे पहले आप यहाँ पर क्या मेंशन करोगे, हिली टेरेन एंड ज्योग्राफी वाला. ठीक है, बेसिकली 70% क्या है, माउंटेन्स है, लैंडस्लाइड्स होती है, और सिलीगुड़ी वाला जो कॉरिडोर है उसका मेंशन कर देंगे यहाँ पर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर डिपेंडेंस बोल देंगे यहाँ पर. देन फॉर I4 इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है भाई, वीक इंडस्ट्रियल बेस है, यहाँ पर वीक इंडस्ट्रियल बेस है जिसमें पुअर पावर, कोल्ड चेन्स और वेयर हाउसेज नहीं है यहाँ पर. तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे वेयर हाउसेज और पावर की बात कर देंगे और कोल्ड चेन्स की बात करेंगे, वो सब यहाँ पर पुअर है. देन फिर फर्स्ट एल लो क्रेडिट एंड मार्केट साइज. ठीक है, इसमें हमारा लाइक लेस देन 2% नेशनल बैंक क्रेडिट है, डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन. सेकेंड एल लिमिटेड कनेक्टेड टू एशियन. जैसे अभी डिले हो गया ट्राइलेटरल हाईवे और ये कलादन जो हमारे डिलेज हुए दोनों, तो वो पॉइंट में मेंशन कर सकते हैं. तो हील मींस आपका पहले हिली टेरेन, आई मींस इंफ्रास्ट्रक्चर, एल फॉर लो क्रेडिट, इसके बाद फिर एल आएगा लिमिटेड कनेक्टिविटी. ठीक है, देन इसमें हमने पढ़ा था हील से. फिर S4 आएगा, सिक्योरिटी इश्यूज है भाई बहुत ज्यादा, जैसे इंसर्जेंसी, एथनिक क्लेशेस और बॉर्डर डिस्प्यूट्स. ठीक है, फिर ई से हमारा इकोलॉजिकल फ्रेगिलिटी. ठीक है, जिसमें रेस्ट्रिक्शंस है माइनिंग पे,
हाइड्रो पे और लार्ज इंडस्ट्रीज पे। एंड फॉर सी लास्ट में, सी फॉर कनेक्टिविटी बोटलनेक्स, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल की बात करेंगे, जिसमें हमारे रोड्स, रेल्स एंड स्लो इंटरनेशनल लिंकेज या मैन्युफैक्चरिंग, वो हमारी चीजें रहेंगी। कनेक्टिविटी की बात करें तो रोड्स और रेलवेज की बात मेनली करेंगे, यहाँ पर रोड्स, एयर, रेलवेज की बात करेंगे। ठीक है, तो एक हमारा ये वाला पार्ट है जिसमें हम लोग इसको बोल सकते हैं नीर इज ऑन हील फेसिंग सेक। नॉर्थ ईस्ट का कोई क्वेश्चन ऐसा फंसता है तो उसमें नीर इज ऑन हील फेसिंग सेक, सिक्योरिटी या फिर इन्वायरमेंटल और फिर कनेक्टिविटी का इशू आता है। ठीक है, तो ये इश्यूज थे इसके। अब देखते हैं मेजर्स टेकन टू एड्रेस दी चैलेंजेस। सबसे पहले तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पे काम करेंगे। इसमें रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी पे काम करना है, भारतमाला सबसे पहले। इसके बाद में नॉर्थ ईस्ट रोड सेक्टर प्रोजेक्ट, इम्प्रूव्ड हाईवेज लाइक गुवाहाटी, सिलचर, शिलोंग और डकवी, तो ये सब को इम्प्रूव करना है। ब्रॉड गेज रेल कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश अरुणाचल प्रदेश 2015 में, त्रिपुरा 16 में, राजधानी इंट्रोड्यूस टू अगरतला। उड़ान एक्सपेंडेड एयर रूट्स टू शिलोंग, तेजपुर, इम्फाल एंड दीमापुर। ठीक है, फिर कुछ इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की बात करेंगे, जिसमें मोर एंड रुकता और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अपग्रेडेड। फिर सितवे पोर्ट अंडर कलादन प्रोजेक्ट पार्शली ऑपरेशनल, इंप्रूविंग मिजोरम्स एक्सेस टू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इसके बाद में इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक इंसेंटिव्स की बात करेंगे। इसमें हम नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम्स की बात करेंगे, इम्पैक्ट बता दिया, और उसका जीएसटी रिम्बर्समेंट, फ्राइड सब्सिडीज, कैपिटल सब्सिडी की बात करेंगे। PM Divine 2022 towards like 6600 crore 24-25 for social infrastructure development के लिए दिया है। फंडिंग फॉर बैम्बू टेक्नोलॉजी पार्क्स, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिवलीहुड प्रोजेक्ट्स, ये अच्छा एक पॉइंट है, इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। प्रमोशन फॉर द लोकल स्ट्रेंथ्स लाइक नेशनल बैम्बू मिशन, बूस्टेड बैम्बू प्रोसेसिंग एंड फर्नीचर इंडस्ट्रीज, मेगा फूड पार्क्स असम, नलबरी और त्रिपुरा। ये जितनी भी मैं अभी ये टर्म्स आपको बता रहा हूँ ना, जैसे नलबरी करके है, या फिर उससे पहले हम लोगों ने जैसे प्रोजेक्ट कलादन प्रोजेक्ट के बारे में मेंशन किया, या फिर ये मोरे, ये सब जितने भी टर्म्स बता रहा हूँ, तो मैं अभी मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों से आप लोगों का एक घंटे का 45 मिनट्स का एक सेशन स्टार्ट करूंगा इन द नाइट टाइम और इन द इवनिंग टाइम, जिसमें हम लोग IR और मैपिंग पूरा कराऊंगा। सबसे पहले आई स्टार्ट विद द प्लेसेस, लाइक जो भी रिसेंटली प्लेसेस जो भी आए होंगे इन न्यूज, वो हम लोग कवर करेंगे, कंट्रीज करेंगे, फिर उसके बाद प्लेसेस करेंगे। तो वो एक पूरा रेडी किया है मैंने डॉक्यूमेंट, तो उसके बेसिस पे आप लोगों के साथ में उसको बैठ के फिनिश करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि 7 से 8 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में वहीं से सोल्व होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में पीस बिल्डिंग एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स लाइक बोडो अकॉर्ड लाइक और ब्रू एग्रीमेंट एंड खरबी एंड लॉन्ग अकॉर्ड 2021, तो ये कुछ हमारे पास में, इनको भी हम मेंशन कर सकते हैं। देन इसके बाद में ये partial withdrawal of the AFSPA from Assam, Nagaland, Manipur enhances investor confidence। फिर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन, जिसमें हमारा NWDP नेशनल नॉर्थ ईस्ट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस टाइप के प्रोग्राम आप लोगों ने किसी ने मेंशन किए थे ये प्रोग्राम, ये वाला, या फिर इससे ऊपर हमने नेशनल बैम्बू मिशन पढ़ा था, एक हमने नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम पढ़ा था स्पेशली फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन, आप लोगों ने किसी ने मेंशन किया था? सर PM डिवाइन और बैम्बू पार्क्स मेंशन किया था। ओके, बढ़िया भाई। किसी ने और कुछ मेंशन किया इसमें से? सर ये मैंने ना इसमें ऐसे किया है कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे स्टेप्स टेकन टू एड्रेस इश्यूज। तो उसमें जो पहले से प्रोजेक्ट्स चल रहे थे कुछ, जो ये PM डिवाइन हो गया या फिर ये कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स है, जो अभी रिसेंटली नए प्रोजेक्ट्स आए हैं ना, जैसे नेशनल बैम्बू मिशन है या फिर एडिबल ऑयल्स का मिशन था, तो उनको सर वे फॉरवर्ड बना के लिख दिया है कि टैपिंग द पोटेंशियल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इन इमर्जिंग सेक्टर्स लाइक फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में मेंशन कर दिया। यहाँ पे नेशनल बैम्बू मिशन, ऑयल पाम्स मिशन हो गया, या टूरिज्म में बुद्धिस्ट सर्किट, इस तरीके से मेंशन किया है सर इनको। ओके, बढ़िया, ठीक है। देन इसके बाद में लाइक IIT गुवाहाटी एंड NIT सिलचर प्रमोट्स AI, रोबोटिक्स, ड्रोन्स एंड एग्रीटेक इनोवेशंस, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। देन आई हैव गिवन द सम वे फॉरवर्ड में आपका मेजर्स हैव बिगन इंप्रूविंग कनेक्टिविटी, क्रेडिट फ्लो, स्टेबिलिटी,
कंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। फिर बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड के साथ में एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो अभी सौरव ने मैसेज में मेंशन किया था। लॉजिस्टिक हब मॉडल लिंकिंग गुवाहाटी, सिलचर, अगरतला, रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगा। प्रमोट इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज, मल्टी स्टेट इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन लाइक डोनर एनईसी और नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, और इधर से अपना स्टेट गवर्नमेंट्स मस्ट बी स्ट्रेंथन टू टाइमली एग्जीक्यूशन फॉर मेजर प्रोजेक्ट्स। देन कंक्लूजन में भी फिर हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी इनिशिएटिव सो प्रॉमिस, जिसमें पीस अकॉर्ड्स इंडस्ट्रियल इंसेंटिव की हम बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद में इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजनल कॉर्पोरेशन एंड देन नॉर्थ ईस्ट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू इंडियाज गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया एंड अ वाइब्रेंट जोन फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इस टाइप का एक आंसर था। फिर देखो ये वाला मैं बात कर रहा था, एक टॉपर का आंसर है, द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया हैज बीन प्रोवाइड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन बेनिफिट सिंस टाइम इमोरल इन इंडिया। ठीक है, तो ठीक है लिख सकते हैं वैसा भी, लेकिन अपन लोग थोड़ा सा उसको लाइक डाटा फैक्ट के साथ में स्टार्ट करेंगे। फिर उन्होंने नॉर्थ ईस्ट का एक वो बनाया है यहाँ पर। फिर प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर लाइक ग्लेसिकल लेक आउट बर्स्ट हो गया, फ्लड्स आ गया। फिर यहाँ से इंसर्जेंसी दिखा दी, इंटरनेशनल बॉर्डर दिखा दिया, ये उन्होंने इकोलॉजी का कुछ सेंसिटिव इकोलॉजी अर्थक्वेक जोन 5 4 का मेंशन किया है। फिर इलीगल माइग्रेशन का पॉइंट दिखाया है यहाँ पर, है ना। देन देयर आर सम इश्यूज, जो इश्यूज दिखाए हैं ब्रॉड वे में उन्होंने एक डायग्राम के थ्रू मेंशन किया है यहाँ पर। तो इस तरह का एक डायग्राम आप भी अपना, अगर आप इश्यूज नहीं दिखा रहे हो तो बेसिकली पहले आप वहां पर एक डायग्राम बना के नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं पहले वो मेंशन कर दो। ठीक है, तो इसमें डायग्राम जरूर बनाना है इस क्वेश्चन में आपको, वो इम्पैक्ट अलग डालेगा आपका। देन इश्यूज फेस्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। सबसे पहले इसमें जोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल वाला, जिसमें अर्थक्वेक प्रोन एरिया आ गया। सेंसिटिव इकोलॉजी का मेंशन किया है, जैसे हिमालय स्लोप्स आर सेंसिटिव टू लैंडस्लाइड्स टू टेरेन इन द रीजन। फिर उन्होंने इंटीग्रेशन कनेक्टिविटी, अब इतना डेप्थ में नहीं जाना है कि स्लोप्स वगैरह के बारे में मेंशन करने जा रहे हो, वो सब आपको नहीं बताना है। ठीक है, आप कट टू कट इन्फॉर्मेशन दोगे, जितना इसका नीड है उतना ही यहाँ पर सफिशिएंट रहेगा। देन इंटीग्रेशन कनेक्टिविटी की बात करेंगे। चिकन कॉरिडोर इज द ओनली वे to connectivity between the northeast and mainland India. ठीक है, increased logistic cost discourages prone industries। ठीक है, इस टाइप का एक मेंशन कर सकते हैं। मणिपुर राइट का इन्होंने दिया, सोशल कल्चरल रीजंस, सिक्योरिटी रीजन इन्होंने मेंशन कर दिया, इसमें इंसर्जेंसी, ड्रग ट्रैफिकिंग और आर्म स्मगलिंग की बात कर रहे हैं। देन दे हैव गिवन द मेजर्स दैट हैव बीन टेकन। इन्होंने देखो ये हेडिंग है वो बिल्कुल लास्ट में लिख दिया, तो आप लोग कभी भी हेडिंग को लास्ट में लिखोगे यू विल स्टार्ट विद द न्यू पेज। ठीक है, start on a new base. So इसमें 10% allocation of budget for energy scheme is provided by the northeast region. Policies like उन्नति, support industrialization initiatives फिर से एक mention किया है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के लिए। देन कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर नेशनल वाटरवेज 1 गंगा एंड नेशनल वाटरवेज 3 ब्रह्मपुत्र, त्रिपुरा बांग्लादेश रेल लिंक, ये अच्छा पॉइंट है। इसमें अच्छा एग्जांपल भी दिया है, आप इसको डायरेक्टली अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना। देन देर आर सम लाइक जो भी हमारे यहाँ पर चैलेंजेस रहेंगे वो देख लेंगे। स्टिल टू पोटेंशियल टू एंटर नॉट अनलॉक्ड, incapable to attract private industrialization to the region. Platforms like BAMSTEC, SHARK has not been used productively. PM Modi stated, Northeast region is the gateway to India and not its end. Thereby, increased focus on the economic side is indispensable towards overall development. अब इतना बड़ा तो याद नहीं कर पाएंगे हम लोग मोदी जी का, लेकिन हाँ कुछ यूनिक बनाने के लिए 2 से 3 कीवर्ड का यूज करेंगे और अपने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था भाई। अभी तक तो सिंपल क्वेश्चन लग रहे हैं सारे, सिंपल ही थे ना क्वेश्चन दो, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है वो इसमें अपना, लेकिन काफी सिंपल क्वेश्चन लग रहे थे मुझे ये। ठीक है, एक फोर्थ क्वेश्चन और करते हैं अटेम्प्ट अभी, उसमें थोड़ा बजटिंग वाला फेज है। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल अगेंस्ट का, एलटीसीजी एंड सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एस्टेबिलिटी इन द यूनियन बजट 2024-25 में दिया था। एवलेट द इम्पैक्ट ऑफ सच चेंजेस इन इंडिया सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट रेजिम। तो इसको 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लोग मेंशन करोगे इस आंसर को। नाउ 420 पे हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। Sir, which question? Actually, your voice was breaking. Fourth question. All right. Thank you, sir.
डन। किसने अटेम्प्ट किया? सर मैंने किया है। कि जय, क्या लिखा जाए आपने बताओ। सर सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा था दैट की चेंजेस इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एंड सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट अ शिफ्ट टुवर्ड्स प्रमोटिंग लॉन्ग टर्म स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स विद चेंज इन बिहेवियर ऑफ हाउसहोल्ड्स। फिर मैंने इंपॉर्टेंट चेंजेस बताए थे। फर्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स रेट एट 12.5%, अर्लियर 10% ऑन इक्विटीज, 20% विद इंडेक्सेशन ऑन अदर्स। एग्जाम्पल में लिखा था इक्विटी सेल टैक्स ऑफ 12.5% एज अर्लियर वॉज 10%। सेकेंड पॉइंट लिखा इंक्रीज्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सर्टेन फाइनेंशियल एसेट्स टू 20%। थर्ड लिखा था रेज्ड एग्जेम्पशन ऑन थ्रेशोल्ड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। फिर इसके अंडर लिखा था टैक्स फ्री लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लिमिट इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 1.25 लैक्स। चौथा पॉइंट लिखा था इसके अंदर सिंप्लीफाइड हाउसिंग पीरियड कैटेगरीज, लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट्स 1 year फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स 2 years फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल। इम्पैक्ट मैंने इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का एक टेबल बनाया था। पॉजिटिव के अंदर मैंने लिखा था इंक्रीजेस स्टेबिलिटी बाय डिस्करेजिंग शॉर्ट टर्म हाई रिस्क ट्रेडिंग। सेकेंड पॉइंट था इम्प्रूव्स क्लैरिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट, रिड्यूस कंफ्यूजन एंड मेक कॉम्प्लायंस ईजियर। थर्ड पॉइंट था डिस्करेजेस एक्सेसिव फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। नेगेटिव्स के अंदर मैंने लिखा था हायर टैक्स बर्डन ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, रिमूव्स इंडेक्सेशन बेनिफिट फॉर एसेट्स लाइक प्रॉपर्टी एंड गोल्ड। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा था रिड्यूस्ड अट्रैक्टिवनेस फॉर लॉन्ग टर्म रियल एसेट्स लाइक डेट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट। और थर्ड पॉइंट नेगेटिव में मैंने लिखा था पॉसिबल शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी इन मार्केट्स। और फिर मैंने कंक्लूड कर दिया था। कंक्लूजन में क्या डाला? सर कंक्लूजन में मैंने मतलब कंक्लूजन पेंडिंग है, मेरे कंक्लूजन नहीं हुआ था, कंक्लूजन बचा था। ठीक है। खुशी आपने अटेम्प्ट किया था इसको? पर प्रगति आपने? सर इसमें पॉइंट्स ज्यादा समझ नहीं आ रहे थे और सिर्फ डेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वाला ही याद आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द यूनियन बजट से था, तो आई थिंक आप लोगों ने बजट को उस टाइम तक शायद नहीं पढ़ा होगा। जिन्होंने कोई अटेम्प्ट दिया होगा तो शायद पढ़ा होगा, लेकिन जो फर्स्ट सेकंड वाले होंगे शायद उन्होंने इस बजट को स्किप किया होगा। तो मे बी ये भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन फॉर द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग बजट को कभी रीड नहीं करते हैं। हम लोग प्रीलिम्स के लिए ही बजट को रीड करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका मेंस में क्वेश्चन नहीं आता है। मेंस में भी हमारे कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन बनने के हाई चांसेस होते हैं, या तो स्कीम्स के रेफरेंस से या फिर उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के रेफरेंस से। तो अभी नेक्स्ट टाइम जो भी बजट आएगा आपका, उसको आप अच्छे से थोड़ा सा कवर करना, क्योंकि प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन मेंस में भी क्वेश्चन फंस जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं इस आंसर को। तो सबसे पहले जो मेंशन किया है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एंड सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन स्टडी की हमने भाई इंट्रोड्यूस किया है ये, और ऑलरेडी यही चीज हमारी इसमें लिखी गई है। तो जस्ट एक मेंशन कर दिया कि उसमें यूनियन बजट में इंट्रोड्यूस हुआ था। आप लोगों को ये सब नहीं मेंशन करना है, आपको डायरेक्टली अपना आंसर स्टार्ट करना है। अब इनका एम क्या है? एम टू रेशनलाइज टैक्स स्ट्रक्चर्स, वाइडन द टैक्स बेस, इंक्रीज रेवेन्यू एंड प्रमोट लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स। इन दोनों का काम ये है। ठीक है, इसके बाद में इंडियाज एस्पायर्स 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इससे हम कंक्लूजन भी डाल सकते हैं ये वाला। ठीक है, लेकिन इंट्रोडक्शन में क्या है? द सेविंग इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क इज सेंट्रल टू सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ. The tax reforms must therefore be analyzed not only for the revenue standpoint but also for the perspective of efficiency, equity and investor behavior. 3 कीवर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो एक बेसिक आप यहाँ पर ये जो है ये इनका जो भी चेंजेस एम करने के लिए, वो रेशनलाइज टैक्स स्ट्रक्चर्स के लिए, वाइड एंड टैक्स बेस के लिए, एंड देन इंक्रीज रेवेन्यू एंड प्रमोट लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स के लिए हम लोग ये लेके आए। देन व्हाट आर द इंपॉर्टेंट चेंजेस इन LTCG एंड STD इन बजट 2024-25 में? चेंजेस इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में एक सबसे पहले इंक्रीज इन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स रेट लाइक इक्विटी एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में, जिसमें इन्होंने बोला कि म्यूचुअल फंड इंक्रीज 10% टू 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। ठीक है, अप्लाइज टू गेन्स अबव 1 लाख पर ईयर। देन सेकंड पार्ट इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्स रेट्स
across asset classes. आई नो कि मैं इस क्वेश्चन में एक चीज ये बता देता हूँ कि इस टाइप का डाटा या फिर इस टाइप का जो कंटेंट होता है वो हम लोगों को जनरली कहीं पर नहीं मिलता है, क्योंकि जितने भी लोग बजट को कवर कराते हैं वो सिर्फ एक जनरल पर्सपेक्टिव से जो बजट इंट्रोड्यूस होता है उसके ही पॉइंट से, वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कराते हैं। तो ये इस टाइप के मीन्स में अगर कोई स्कीम आ जाती तो आप उसको इजिली कवर कर सकते थे, क्योंकि स्कीम आप ऑलरेडी किसी ना किसी सेक्टर से जोड़ के उसको पढ़ते हो। लेकिन इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं, टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो हम लोग बेसिकली उनमें फंस के रह जाते हैं। तो जब भी कुछ ऐसे टॉपिक को देखते हो जिसमें चेंजेस की बात होती है, जिसमें एप्लीकेशंस की बात होती है, तो उन क्वेश्चंस पे आप मेंस का एक अपना एक पेज नोट जरूर बना के रखा करो। चाहे वो कोई भी टॉपिक है, चाहे वो बजट से आ रहा है, चाहे वो करंट अफेयर में पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस पर एक पेज का, आधे पेज का एक नोट जरूर बना के रखो जिसमें आप पॉइंट जनरेट कर सकते हो। ठीक है। देन यूनिफॉर्मिटी एंड टैक्स रेट्स अक्रॉस एसेट क्लासेस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन टैक्स लाइक गोल्ड, प्रॉपर्टी, डेब्ट फंड्स, है ना। देन यूनिफॉर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स of 12.5% into the multi asset categories, like replacing the complex में क्या था 10, 20 और 30% का इंडेक्सेशन था, तो अभी वो क्या हो गया, सिर्फ एक 12.5 का कर दिया इन लोगों ने। दिस इज अ चेंज। रिमूवल ऑफ सर्टेन एग्जम्पशंस, लाइक एग्जम्पशन में क्या किया, कैपिटल गेन्स वर रेशनलाइज्ड टू क्रिएट अ simpler structure. Real estate index benefits remain limited only to elder investments. Then there are some changes in the securities transactions tax में। इसमें इन्होंने क्या किया है कि भाई सबसे पहले इंक्रीज डिस्करेज एक्सेसिव स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग, लाइक उसमें रिवाइज रेट्स में फ्यूचर्स में क्या था, इंक्रीज फ्रॉम द 0.01.25 टू 0.02, एंड ऑप्शंस में इंक्रीज इन, अभी डिटेल में आपको जाने का नीड नहीं है, बस आप इंक्रीज इन एसएसटी ऑन डेरिवेटिव्स में बात करोगे, उसमें बस आप इंक्रीज डिस्करेज एक्सेसिव स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग मेंशन करके छोड़ दोगे, इतना डेप्थ में जाने का नीड नहीं है आपको। ठीक है। फोकस ऑन रिड्यूसिंग market volatility, इसमें aims to curb excessive FO funding which has grown over 200% last 3 years में। CB का एक mention किया, इसमें out of 10 retail traders in derivatives incurred losses. Then there are some impacts on Indian saving and investment regime, shift toward long-term financial discipline, जिसमें encouragement of productive investments की बात कर रहे हैं, एंड उसमें हेल्प करेंगे redirect savings into stable instruments like equity, SIPs, debt funds and government bonds की हम लोग बात करते हैं। इसके बाद reduce excessive retail participation in FOA की बात करिए, जिन्होंने world largest derivatives market like NSE 224 में reforms seeks to reduce systematic risk। ठीक है। देन रेवेन्यू मोबिलाइजेशन विदाउट डिस्टॉर्टिंग मार्केट्स में बात कर रहे हैं, हायर टैक्स इनकम, इसमें इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी एंड ब्रॉडन्स द टैक्स बेस की बात कर रहे हैं। इसके बाद आपका द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स मल्टी 1000 करोड़ एडिशनल रेवेन्यू, जिसमें आपका 4.9 ऑफ जीडीपी फॉर 24 to 25। प्रेडिक्टेबल एफिशिएंट टैक्स स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पर यूनिफॉर्म, जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की बात की, इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट जो हमने ऊपर भी बात किया था, under one umbrella reducing arbitrage opportunities. Then impact on small investors, marginal increase in tax liability की बात करिए, जिसके 2.5% इंक्रीज इक्विटी, और बेसिकली आप देखोगे तो इसमें डाटा का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आया है, और डाटा के साथ में इन लोगों ने कंपैरिजन करके बताया हर चीज में। फिर इन्वेस्टमेंट्स विद 5 लाख LTCG नाउ 50,000 इंस्टेड ऑफ 40,000। फिर कुछ म्यूचुअल सिप बिहेवियर्स के बारे में बात किया है, म्यूचुअल पेनिट्रेशन पार्टिसिपेशन प्राइस, SIP flows reached to all-time high 21,000 crore month in 2024। फिर इसमें impact on the metal market depth and capital formation, short-term liquidity impact and support on the formal saving channels की बात किया है। Then इसके बाद में long-term structural impacts like greater tax equity, increased confidence in the tax system। दोनों पॉइंट आप लिख दोगे, सिर्फ आप पॉइंट को लिख के एक्सप्लेन भी करोगे तो भी काम चलेगा यहाँ पर। देन फिर इसके बाद में इन लोगों ने strengthens physical stability, enhances tax equity, promotes disciplined financial behavior. Over the long run, these changes are likely to support Indian transition towards a balanced, productive, and sustainable saving investment ecosystem, essential for achieving high growth and inclusive development, like 5 trillion economy का ग्रोथ कर लेंगे, अचीव कर लेंगे टारगेट को। ठीक है। कुछ एक ये रिंकर ने आंसर लिखा था, उसमें इन्होंने टैक्स बेस के बारे में बात किया, फिर चेंजेस दिखाए उन्होंने। अब चेंजेस में ए पार्ट में द बजट हैज इंक्रीज्ड द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 12.5 था, प्रीवियस इनका 10 था, अभी वहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पेड ऑन द एसेट रिटर्न्स मोर देन 1 ईयर मैच्योरिटी दिखा दिया, तो वही पॉइंट्स मेंशन किए। फिर सेकंड में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का दिखाया है, जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द स्टॉक एक्सचेंज की बात की है। देन बजट हैज डबल्ड द एसटीडी फ्रॉम द 0.1 to 0.02%। देन देयर आर सम इंपैक्ट्स ऑन द सेविंग इन्वेस्टमेंट, पॉजिटिव इंपैक्ट्स एंड देन नेगेटिव इंपैक्ट्स।
ठीक है, इस टाइप के पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किया है यहाँ पर, एंड उन्होंने कंक्लूजन फिर मिस कर दिया। तो बेसिकली ये 4 क्वेश्चंस थे हमारे अभी। मैंने कुछ इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए रखे हैं, जो कि आप इनको एक बार ट्राई करोगे। और एक मिनट से मुझे 5, 6 and 7 जो हमने 5th क्वेश्चन, लिबरेशन पॉलिसीज 1991 significantly enhanced India's economic dynamism, but the evolving global and domestic landscape necessitated reforms 2.0 for sustained economic development and prosperity। ये वाला जो पार्ट है, ये कुछ पार्ट आपका जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी के ही उसी के ही कुछ पॉइंट्स हम लोग मेंशन कर सकते हैं। तो इसको आप अटेम्प्ट करोगे, देन यूनियन बजट अफेक्ट्स ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी, yet neither the budgetary process nor the budget policies come under substantial public scrutiny. Do you agree? तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको एक बार अटेम्प्ट करना। देन ग्रीन बजटिंग, एक ही बजटिंग का एक और क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करेंगे। देयर आर 3 क्वेश्चन, आप लोग इसको होमवर्क में अटेम्प्ट करोगे और इसको लिखने का ट्राई करोगे। कल हमारा शायद इंफ्रास्ट्रक्चर का है, तो कल का सेशन वही मॉर्निंग में रहेगा अपना, तो उसको उस टाइम पे ही फिनिश करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं आपको कुछ एक टेबलर फॉर्मेट पे भी प्रोवाइड करूंगा मॉर्निंग में, तो थोड़ा सा आप उसको रिवाइज करके, या फिर मैं भी रात को शेयर कर दूंगा, उसको रिवाइज करके ही सेशन में आना, ठीक है? तो क्योंकि उसके बेसिस पे आप सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो भी रहेंगे हम लोग उनको लिखेंगे वहां पर, ठीक है? सर हाँ निश्चित। सर आपने वो एसडीजी वाला जो टेबल दिया था ना, हाँ उसमें सर पुराना है, तो अगर आप क्या अपडेट हाँ करवा सकते हैं उसको, मतलब सर नंबर भाई, मेरे को टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम सेशन में बोला था कि आप लोग वैसे उसमें डाटा अपडेट कर लोगे तो वो आपके लिए बिल्कुल नया हो जाएगा, ठीक है इसलिए मैं उसको शेयर नहीं कर रहा था क्योंकि वो अपडेटेड नहीं था। लेकिन आप उसके पॉइंट्स देखोगे तो आज भी वो रिलेवेंट है, सारे पॉइंट्स है ना। हाँ हाँ वो बस पॉइंट उसमें सर, कुछ सर बस रैंकिंग और बस जो स्कोर है, एसडीजी स्कोर है, बस वही अपडेट करना। हाँ, एसडी स्कोर और नीति आयोग का कुछ है, या इंडेक्स के जो रैंकिंग है वो उसमें लाइक अपडेट करनी है आपको, बाकी सब सेम रहेगा। ओके सर। अभी मैंने एक ये एलपीजी का भी भेजा ना, एक रैंकर का, एक टॉपर का, एक 2 से 3 पेज का नोट्स भेजा है, की पॉइंट्स लेकर रखे उन्होंने, अभी मैंने यस भेजा सर। था यस ग्रुप सर, में, ग्रुप में। है ना? तो वो भी अच्छा है, एक बार उसको भी जस्ट एक एक्टिव रिकॉलिंग के लिए वो भी अच्छा है। वरना मैंने आपको जो अभी आज बताया, क्या बताया मैंने एलपीजी के लिए, तीन चीज बताई थी ना आपको एलपीजी के लिए, क्या बताया बताओ, किसी को याद है अभी? लिफ्ट फॉर लिबरलाइजेशन। लिफ्ट, इसके बाद सर फिट ग्लोबलाइजेशन के लिए और फिट प्राइवेटाइजेशन के लिए ग्लोबलाइजेशन। सर ठीक है, लिफ्ट इसको याद करके 3D और FIT। हाँ ठीक है भाई, इसको करो और फिर एक बार कल मॉर्निंग में अपना सेशन रखेंगे, कल मॉर्निंग में मिलते हैं, ठीक है? सर इंट्रोडक्शन के लिए भी कोई पीडीएफ है रेडीमेड टाइप का? तो देंगे, वो भी देंगे, वो मेंस के टाइम पे देंगे, अभी नहीं देंगे, वो जब जो बच्चे प्रीलिम पास करेंगे उनको देंगे। तो अभी प्रीलिम्स के लिए भी लगना है हम लोगों को कुछ टाइम बाद। अभी आईआर और मेरा जो टारगेट है, आईआर और मैपिंग वाला जो पार्ट है, मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में उसको कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। और एक कल सुबह के सेशन में एक सैंपल आप लोगों को दिखा देंगे कि कैसा हम लोग करेंगे उसमें, एक मतलब एक टॉपिक को कवर कर लेंगे वहां पर, ठीक है? तो वैसा कुछ दिखा दूंगा, तो उसके बेसिस पे फिर लेके चलेंगे उसको, ठीक है? ओके चलो ठीक है, ओके ओके भाई, थैंक यू सर। नमस्ते। ओके थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।